بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ جاننا کافی نہیں ہے، ہمیں اپلائی کرنا چاہیے۔ خواہش کافی نہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ دوستو، زندگی میں ہم نے جو علم اور تجربات حاصل کیے ہیں اس کا استعمال بھی ضروری ہے۔ علم کو آپ جتنا پھیلائیں گے وہ اتنا بڑھے گا۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اسے پورا کرنے کے لیے محنت بھی ضروری ہے۔ آپ کی رائے بھی کمنٹس میں بتائیں دوستو۔ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز اتنی زیادہ نہیں ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، جس سمت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مطلب انسان کی سوچ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، اس کی کوئی سیما نہیں۔ دنیا کی ہر چیز کو ناپا اور تولا جا سکتا ہے۔ کمنٹس میں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ جن لوگوں نے پیار کرنا اور غلطیاں کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو زندہ دفن کر لیا۔ رشتوں میں پیار کا ہونا ضروری ہے، چھوٹی موٹی انبن بھی ہونی ہے جب سب پریوار ساتھ ہوتا ہے۔ اکیلے جینا بھی کیا جینا، جب تک زندہ ہیں پیار محبت نوک جھوک چلتی رہنا چاہیے۔ ایک شخص حقیقی زندگی جیتا ہے جب وہ کسی کی خوشی سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر ہم کسی کی حد سے زیادہ مدد کرتے ہیں اور وہ ہماری تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ پورا دن ہنستے ہنستے بیت جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم سب ماضی پہ رہتے ہیں اور ماضی کے ذریعے ہم تباہ ہو گئے ہیں۔ دیکھو دوستو، بات تو صحیح ہے، جو پیچھے ہوا اسے بھول کر اپنے رشتوں کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ ماضی میں ہی رہیں گے تو رشتے اور بگڑیں گے اور زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ معاف کرنے والوں کو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں بتائیں۔ جب کوئی شخص گہرائی سے اور سنجیدگی سے سوچتا ہے تو اس کا عام عوام میں برا وقت ہوتا ہے۔ مطلب جو دوسروں کے معاملے میں زیادہ اور حد سے زیادہ انوالو ہوتے ہیں، ان کی چند اپوز لوگوں کی گالیاں کھانے تیار رہنا چاہیے۔ مدد اچھی بات ہے، اس کا صلہ خدا سے مانگا کرو، دنیا سے نہیں۔ آرٹ اس بات کا ثالث ہے جسے نہیں کہا جا سکتا۔ آرٹ نے پینٹنگ کو کسی چیز پر اتارا جا سکتا ہے اور اسے دیکھ کر ہم اس تصویر کے بارے میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی گہرائی کو کہا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ایماندار دوست کیا معنی ہے۔ زندگی پر یقین کریں، ایک کتاب یا خطیب سے بہتر تعلیم دیتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کا کوئی سچا اور پکا دوست ہے تو وہ آپ کو کبھی غلط راہ میں نہیں لے جا سکتا، اور اس کے مشورے مانا کرو، کیونکہ وہ دوست کتاب اور کتاب لکھنے والے سے اچھا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے دوستو؟ پلیز کمنٹ میں بتائیں اور پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ایک ذہین شخص وہ نہیں ہوتا جو بہت کچھ جانتا ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو خود کو جانتا ہو۔ دوستو، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ آپ جتنا بھی پڑھے لکھے ہو، غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے علم کو پہچانیں اور اس کو اپنا غرور بننے نہ دیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی قابلیت کا صحیح استعمال کریں، جو دوسروں کو اور آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اصلاح بہت کچھ کرتی ہے، لیکن حوصلہ افزائی زیادہ کرتی ہے۔ دوستو، کچھ وجہ سے ایک دوسرے میں دشمنی ہو تو بیٹھ کر صلح کر لینا چاہیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔
लेकिन जब हम किसी की हौसला अफजाई करते हैं, उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो वो काम हर एक की ज़िंदगी को आसान कर देगा, इंशाअल्लाह। दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। बेहतरीन हुकूमत वो है जो हमें खुद पर हुकूमत करना सिखाती है। हाँ दोस्तों, हम ख्वाब तो बड़े बड़े देख लेते हैं और अच्छे से अच्छे आइडिया बिजनेस के लिए सोच भी लेते हैं, पर अमल कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, ये आपको ही करना पड़ता है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। हुकूमत करो मतलब आपने जो इरादा किया है उसे पूरा करो, अपने आप को उसमें ढालो, अपने आप को तैयार करो। जिस तरह से आप लोगों को देखते हैं वो वही है जो आप इनके साथ बर्ताव करते हैं, और जिस तरह से आप इनके साथ बर्ताव करते हैं वो वही होता है। मतलब हमारा बर्ताव, रहन सहन, बात करने का तरीका, खासकर आज की दुनिया में कपड़े, इन सब से हमारी पहचान सामने वाला अंदाज़ा लगा लेता है और हमें उस अच्छे बुरे नज़रे से देखता है, और हम भी सामने वाले को ऐसे ही देखते हैं। बड़ा घर गाड़ी हो तो ज़्यादा इज्जत, और गरीबों को आओ बैठो खाओ और चले जाओ। आपकी क्या राय है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट में बताएं। उन गुलामों की गुलामी से बढ़कर कोई नाउम्मीद गुलामी नहीं है जो अपने आप को बेड़ियों से आज़ाद समझते हैं। दोस्तों, आप कमेंट्स में इसकी वजाहत कीजिए, मुझे खुशी होगी। हम सही तौर पर सिर्फ इस वक्त जानते हैं जब हम बहुत कम जानते हैं। इल्म के साथ शक में इजाफा होता है। जितना इल्म हासिल करेंगे उतना हमें सही और गलत का अंदाज़ा होगा। जाहिर सी बात है, एक आलिम एक आम आदमी से ज़्यादा अच्छी तरह वजाहत कर सकता है, और आलिम को पता ज़्यादा होता है, इसलिए हर चीज़ में शक करना जायज़ है सही फैसला लेने के लिए। आपकी राय भी कमेंट्स में बताएं। इंसान का आदाब एक आईना है जिसमें इसकी फोटेज झलकती है। दोस्तों, इंसान का अदब और बात करने का तरीका उस इंसान की पहचान बनाती है। जैसे आपके अखलाक होंगे, आपको ये फ़ानी दुनिया वैसे ही पहचानेगी। इंसान के किरदार को इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं दिखाती जिस पर वो हंसता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग ख्वामख्वाह किसी का मजाक बनाते हैं और उस पर हंसते रहते हैं। हंसी मजाक अच्छी बात है, पर उस वक्त तक जब तक के सामने वाले को बुरा न लगे। हर वक्त मजाक आपके किरदार को ख़राब कर देता है और आप एक बद किरदार में शामिल हो जाएंगे और कल से आपका मजाक उड़ाया जाएगा। आपकी राय भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। तक़सीम और फ़तेह एक दानिशमंदाना असूल है, लेकिन मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना इससे भी बेहतर है। दोस्तों, डिवाइड एंड रूल बहुत पुराना और कारीगर उसूल है, ख़ासकर जंगों में फ़तह हासिल करने के लिए। जैसे आज हम मुसलमान तक़सीम हो गए हैं, शिया, सुन्नी, तबलीग, देवबंदी और बहुत से जमात बन चुके हैं। जब हम मुत्तहिद होकर मतलब एक हो जाएंगे तो सबसे बेहतर होंगे इस दुनिया में। इमरान प्रतापगढ़ का एक शेर है, जिनके सैकड़ों खुदा हो वो एक जगह खड़े हैं। जिनके सैकड़ों खुदा हो वो एक जगह खड़े हैं, जिनका एक खुदा है वो बिखरे हुए पड़े हैं। आपकी राय भी कमेंट में बताएं, मुझे खुशी होगी। जो कोई राज रखना चाहे वो सिर्फ इस हकीकत को छुपाए जो इसके पास है। दोस्तों, पहले तो आप अपनी राज की बातें किसी को न बताएं तो अच्छा होगा। अगर आप किसी का राज जानते हैं तो उस राज की हकीकत किसी को न बताएं। ऐसी चीज़ें अमानत होती हैं और अमानत में ख़यानत करना
बुरी बात है। जो आज शुरू नहीं हुआ वो कल कभी ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, हम सिर्फ बातें ही करेंगे तो कैसे चलेगा? आज का काम कल पर मत टालो। अगर काम आज स्टार्ट नहीं करोगे तो पूरा कैसे करोगे? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बात ज़रूर याद रखना। एक आदमी को जीने के काबिल एक मकसद दें और वो किसी भी हालत में ज़िंदा रह सकता है। देखो दोस्तों, अब दुनिया में आ ही गए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ज़िंदगी में मौके की तलाश करो और अपनी काबिलियत के दम पर ज़िंदगी जीने का एक मकसद बना लो। मतलब कोई ना कोई काम में लगे रहो, इंशाअल्लाह सब ठीक रहेगा। सही और गलत के मुकाबले में तकरीबन दुरुस्त फैसला करना बेहतर है। दोस्तों, आपको जब भी फैसला करना पड़े, आप सही और गलत को समझें और दुरुस्त फैसला करें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मोहब्बत एक मिसाली चीज़ है, शादी एक हकीकी चीज़ है। दोस्तों, आपकी मोहब्बत जिसे भी आप करते हो, इस दुनिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिसाल दे पाएंगे और आपकी मिसाल देकर आपको याद करेंगे। शादी करना ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हकीकी है। बिना शादी के एक मर्द अधूरा है, चाहे उसके पास जितनी भी दौलत हो। शादी ज़िना से बचाती है। आपकी राय कमेंट्स में बताएं। सब कुछ आसान होने से पहले मुश्किल है। दोस्तों, हर काम स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है और धीरे धीरे वो आसान हो ही जाता है। अपनी मेहनत बरकरार रखें और अल्लाह का नाम लेकर काम स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। टैलेंट खामोशी में तश्कील पाता है, किरदार तूफ़ानी खलल रोशनी के रोशनी में। दोस्तों, इसकी वजाहत क्या हो सकती है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे लोग हैं जो कभी गलतियां नहीं करते क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहते। दोस्तों, कभी कभार हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं और हम फिर भी उसे करते चले जाते हैं। दिल साफ रखें और हर बुराई से दूर रहें, खासकर शराब से। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह हम सबको इस बुरी चीज़ से महफूज रखे। आमीन। अच्छे मूड को पकड़ो, ये हमसे कम ही आता है। दोस्तों, जब हम खुश होते हैं तो हमारा मूड भी अच्छा होता है। ज़िंदगी में खुशी बहुत कम नसीब होती है। जब भी आपको खुश होने का मौका मिले, उस वक्त खुशी के मौके को दिल से जी लो, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। खुशी चंद लम्हों की मेहमान है और गम हमारा साथी है। आपकी राय ज़रूर बताएं। हर कोई न कोई बनना चाहता, लेकिन कोई भी बनना नहीं चाहता। दोस्तों, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं और दौलत शोहरत भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाब में। दोस्तों, मेहनत, लगन और कोशिशों से ही ये दुनिया बेहतर बनाई जा सकती है, न कि बड़े बड़े ख्वाबों से। आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।